Unpopular opinion, bodybuilding has ruined men's perception of what a healthy body should look like. Young men's mind it is that कि good healthy fit body means कि आप बड़े biceps है, broad shoulders है, या ऐसा फिर six packs है. दिलजीत ने बोला, ऋतिक रोशन ने भी बोला है, फिर six pack it doesn't symbolize कि you are healthy. Exactly. Your body fat is low, obviously. अगर तुम ripped हो, अच्छा body है, but you smoke a lot, you drink very frequently, you do drugs, but maybe half of Bollywood does, and they are ripped. Not sure if they're healthy or not. Hi guys, welcome back to Imposters. Today is just Shubham and me, and we are doing unpopular opinions. We usually do this with our guests, Yes. but today we thought let's just give our opinions because our opinions are also important. They do matter Yeah. to us. First one, shoot. Shoot one. Okay, let's go. The first unpopular opinion. Very unpopular opinion, but busy days are the best days. You might be tired and stressed, but at least you were not overthinking and sad all day. This is the best opinion bro. Like honestly, ऐसे जब तुम खाली बैठे रहते हो ना, so you are thinking मैं कुछ कर नहीं रहा. और स्पेशली आजकल के जनरेशन में इतना प्रेशर है, सोशल मीडिया पे इतना लोग फ्लॉन्ट करते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, तो तुम खाली बैठे हो तो यू आर जस्ट स्क्रोलिंग एंड ऐसे स्टार्ट में अच्छा लगता है, बट सेकंड हाफ ऑफ द डे चालू होता है, यू आर लाइक ब्रो मैंने कुछ किया ही नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम जस्ट सिटिंग आइडल, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग विद माई लाइफ, एंड यू स्टार्ट ओवर थिंकिंग. It is kind of toxic also because people are not allowed to chill anymore. Like, oh, if I take a break for 2 days, I'm like, bro, I'm not doing anything in life because of everyone around me is doing something. But after a point, you are like, कि हाँ भाई वो busy रहना ही अच्छा है, stress रहना ही अच्छा है, दिमाग खाली दिमाग शैतान का घर बोलते हैं ना लोग. Absolutely. I think that it's not an unpopular opinion. It shouldn't be an unpopular opinion. Like it should be a very popularized thing. And also I feel that कि like when you're busy, when you're stressed, so your mind is just working all the time. Yeah. Like the previous day you're thinking कि मैं अगले दिन क्या करूँगा, and अगले उसका अगले दिन क्या करूँगा, because I remember कि back in my CA final days जब मैं ऐसा पढ़ता था तो मेरे को पता नहीं मेरे 5 महीने जब वो था क्या बोलते उसको अपना स्टडी लीव था तो वो कैसे निकले. एंड मैं बोला यार वो मेरा दिसंबर में चालू हुआ था, मई का महीना आ ही गया, 5 months हैव जस्ट फ्लू. एंड आई एम थिंकिंग कि क्या हो गया. एंड एग्जाम्पल जब कोविड आया तो वी वर वर्किंग क्योंकि आर्टिकलशिप चालू था है ना, एंड आई वाज इन अ बिग 4, जो लोग का ऐसे कुछ वर्क नहीं था एंड कॉलेज ऑनलाइन हो रहा था, तो दे वर गेटिंग बोर्ड एज फक. लाइक क्या करे दिन भर हम लोग ये करे, लाइक दे वर एंजॉइंग, बट मेरे लिए दिन रात ऐसे हो रही थी कि अरे एक और दिन निकल गया, एक और दिन निकल गया, एक और वीकेंड आ गया. अभी भी फील होता है बिकॉज वी आर डूइंग सो मेनी मल्टीपल थिंग्स, एंड एवरी थर्सडे आई फील कल फिर से फ्राइडे आ गया. I'm like भाई कैसे भाग रहा है, क्योंकि like Monday, Tuesday is like very stressful, proper business and all. फिर Wednesday, Thursday, Friday, and you like Thursday evening when I'm traveling back by train. And फिर कल फिर से Friday, फिर से weekend, and I'm happy. I won't lie, I'm happy weekend. But it's like कि क्या time क्या भागता है ऐसा पता नहीं चलता, and that's only because you're busy. Plus like apart from it, if you're not busy again, like you said, फिर खाली दिमाग शैतान का घर types. That's very true, and plus you do all unnecessary things in life. Exactly. You get addicted to too much gossiping. You get addicted to let's say porn in case of men or like anyone. Like, and in that phase also, you're in touch with those friends only who are not doing anything in life. Exactly. So you're constantly hanging out with them, talking to them. फिर उनको देख के उतना motivation भी नहीं आता, and you feel कि नहीं मैं तो life में ठीक कर रहा हूँ, but you're actually not. And then after a certain point of time, you get like that inferiority complex from your like friends who are doing something. Exactly. And you're like कि इससे क्या hang out करने का, ये तो ज्ञान देता रहेगा, and things like that. वो बोलते हैं ना it's all about perspective कि मतलब when you're busy. दिखा tattoo दिखा ना. Yeah, it's all about perspective. It's all about perspective. When you're busy doing shit, no, so you automatically feel like doing more shit. अगर मैं खाली बैठा हूँ ना, मेरे को लगता है bro fuck it, मैं समझ आज छुट्टी लिया है कि मैं ये करूँगा, but मैं first half waste कर लिया, second half is also like bro मैं क्यों ही करूँ, अभी कल कर लेंगे. But when you're busy, when you're actually doing a lot of things, you feel like doing more things. Correct. कि bro इतना सब कुछ कर लिया, ये भी कर लेता हूँ. तो it's all about perspective. Like ऐसे बोलते हैं ना कि you think in a way कि I'm grateful for being busy. I'm grateful for having no time. Like it's such a blessing, bro. Like, and it's a very beautiful thing. So I remember Salman Khan saying this. कोई तो इंटरव्यू में बोल रहा था, मे बी कॉफी विद करण और समथिंग, where there was this actor called Monish Bahl.
मैं लाइक नाम भूल गया बट बहुत फेमस मूवीज में एक दो पहले आ चुका है सलमान खान के साथ एंड बैक इन द डे लाइक प्रॉब्ली सलमान डिडंट हैव दैट मच वर्क एंड दैट गाय हैड so you know फिर वन सलमान met him in the gym like back in the day and like Salman said कि maybe he was you know like complaining or I think cribbing about something kya there's like you know so much work and all this and Salman was telling him कि bro I don't have you know for that much work I think like you know for you are blessed to have so much work etc and then a year later I don't think like sorry I don't know what happened but like all his projects like you know were taken away from him like due to some reasons whatever एंड फिर उसके बाद भी सलमान खान ने बोला कि लाइक फिर दैट डे ऑल्सो आई रियलाइज कि आई नेवर टेक माई वर्क फॉर आई नो नेवर टेक इट फॉर ग्रांटेड एंड इट्स एक्चुअली a very like you know like a proper blessing to be busy all day and to have work and to have that innate feeling inside you where like even if you take a 2-day break and like taking a break is very necessary 100%. but even if you take a 2-day break at the end of the second day you're like कि अब थर्ड डे ब्रेक नहीं हो पाएगा आई नीड टू यू लाइक यू नो फॉर गेट बैक टू डूइंग समथिंग सो आई थिंक विद दैट्स अ साइन कि at least like you know if you're not someone who is just here to like pass time you're here to create something or to do something like you know I think meaningful or you know purposeful in life. Unpopular opinion, donating to charity give you a warm feeling for a short time but by creating dependence you are actually harming the person whom you give your gift to. थोड़ा sensitive है but I would say कि see there's a difference between I think you know donating to homeless people and donating to institutions. Correct. अब institutions भी उसका end use अच्छे से करते हैं कि नहीं वो तो मेरे हाथ में नहीं है obviously like you have to do like do your due diligence and all and after when you're like you know giving away money in a form of you know donation to an institution but let's say helping you know specially abled people like you know visually impaired or let's say you know the like you know for the children and spouse of army people you know who have lost their lives like I'm just giving some examples so वहाँ पर is you know definitely a very good cause and I think everyone like you know once you have enough money and your home is sorted like your own personal expenses are sorted तो उसके बाद I think you know 5-10-20% like आपका जितना भी उतना देना चाहिए बल्कि क्योंकि it is for a very good purpose I feel exactly है ना कुछ लोग बोलते हैं ना कि ऐसे beggars को सिग्नल में मत दो क्योंकि वो तुमसे ज़्यादा कमा रहे हैं तुम बेगर्स को दे रहे हो पैसे और वो लोग जाके इधर और खर्च कर रहे हैं मतलब कि वो तो है उससे ज़्यादा एक क्या है कि मतलब कि आई थिंक प्रॉब्लम जो लोग बोलते थे पहले एटलीस्ट मेरे को बचपन में कि इनके भी सब बॉसेस वगैरह होते हैं करेक्ट तो लाइक दे हैव नो अदर ऑप्शन बट टू फिर गिव इट बैक टू देम करेक्ट एंड मतलब आई मे बी रॉन्ग बट लोग पहले क्या बोलते थे कि लाइक यू नो ऑल द पीपल यू नो फिर विदाउट लिम्स ऑन ऑल दैट यू सी ऑन लाइक स्टेशन एंड ऑल तो लाइक उनको वैसा किया गया है सो दैट दे कैन बेग तो लाइक फिर प्रॉबेबली जो भी लाइक देयर इज सम डिफरेंट बिजनेस गोइंग ऑन जो भी है सब इविल लोग हैं बहुत गलत कर रहे हैं जो भी है बट लोग को वही है कि ये अगर तुम किसी फिर बच्चे को दे रहे हो तो वो जाके या तो अपने बॉस को देगा या अपने बाप को देगा और वो उसका फिर दारू पिएगा ऐसा बट ऐसा मतलब हम खाना दे दो हाँ एग्जैक्टली खाना दे दो ऐसे पैसे मत दो क्योंकि तुम्हें पता नहीं हो पैसे आगे सिगरेट फूक रहा है सो योर donation is going to waste you are actually killing that person but बोलते हैं ना charity is always very debatable bro मतलब कि तुम पैसे दे रहे हो उसको खुश करने के लिए कि तुम पैसे दे रहे हो क्या ताकि तुम्हें दुआ मिले so it's like you are giving it for their benefit or your benefit so it's always like debatable but if you're like if you want to give it if you are in a position to give it of course you should give it to people who actually need it but you also need to analyze कि किसको दे रहे हैं कहाँ दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं but the point you made like कि तू like you know फिर तुमको खुद को अच्छा लग रहा है but उसमें कोई ऐसा कुछ harm तो नहीं होना चाहिए because you know फिर obviously if at the end of the day you know फिर just before going to bed you feel कि like you know back in the day I wasn't in a position कि मैं मेरे सगे भाई को भी कुछ दे सकूं but I'm in a position जहाँ पर मैं like you know underprivileged लोगों को कुछ दे रहा हूँ or I'm giving back to the society because you know God has just you know blessed me with like for all this wealth in life obviously I've also worked hard for it but I'm in a position right now जहाँ मैं कर सकता हूँ so for me if I'm in a position but मैं कुछ नहीं कर रहा तो मेरे को guilt आएगा maybe at the end of the day it's like giving it back to your society मेरे को society ने इतना दिया है चाहे भगवान बोलो चाहे किसी को भी बोलो कि the society is giving me so much it's my job to give it back now I give it back to beggars now I give it back to institutions or I give it
मेरे को समझ कोई एनजीओ बनाना है, वो मेरे ऊपर है, मैं किसी को भी दूं. इन द एंड इफ आई एम डूइंग someone who needs it. हाँ, in the end if I am doing it for the right means, then and with the right attitude, intention, then it's a good thing. अगर मैं किसी को भी ऐसे बोलते ना कि हाँ fuck it bro, ऐसे गलत इंटेंशन से दे रहा हूँ ताकि मैं इसको दे रहा हूँ तो मेरी लाइफ में अच्छा होगा, मैं प्रे कर रहा हूँ, बोलते हैं ना tax purposes. क्या पता वो भी करना पड़े लोगों को. वही लोग वही तो करते हैं exactly. वो सब पॉलिटिकल पार्टी में सब होते हैं, मतलब वो होता है पूरा टैक्स का पूरा सेक्शन है कि तुम पॉलिटिकल पार्टी में डोनेशन दे रहे हो तो तुमको इतना मिलेगा या जो भी होता है समथिंग, वो अच्छे से याद नहीं आ रहा है. बट वही मतलब कि आई थिंक कि लाइक इन दिस ओपिनियन कि लाइक इंडिविजुअल्स को देने से अच्छा लाइक प्रॉबेबली अगर तुम किसी लाइक फिर डोनेशंस दे रहे हो, लाइक इन द सेंस वन ऑफ माय कजन सिस्टर्स लाइक शी इज़ अ बिट फिर विजुअली इम्पेयर्ड. तो मेरे को लगता था कि मतलब अगर जाके कभी मेरा पोजीशन हो तो कोई भी लाइक किड हु इज़ लाइक विजुअली इम्पेयर्ड और लाइक स्पेशली एबल्ड, हैंडीकैप, मतलब कि जो भी होता है, अगर इफ़ यू कैन गिव इट टू देम ताकि उनका वेलबींग अच्छा रहे, उनका एजुकेशन हेल्थ केयर अच्छा रहे, जो लाइक फिर आर्मी में अपना लाइफ लूज कर देते हैं, उनके बच्चों के लिए जो भी सब लाइक फंड्स होते हैं, लाइक ऑब्वियसली आई डोंट नो कि उसका एंड यूज क्या कर रहे हैं सामने वाले, बट मेरा इंटेंशन सही है तो आई विल प्रोबेबली फील अ बिट हैप्पी कि आई एम डूइंग माई बिट एटलीस्ट. यू हैव टू लेट योर सेल्फ बी रियली फकिंग सैड अबाउट इट. आई थिंक आई एग्री विद दिस. मतलब वो जोन में तो जाना चाहिए कि इफ लाइक यू आर हैप्पी ऑलवेज, which is a good thing, which means that you are grateful for a lot of things in life, and you are satisfied with whatever you are doing, and that's the goal. Like people say, right, ki peace is important. Happiness is just a moment of peace, but peace is lifetime of happiness. So that is very important. But for you to do things which you want to do in life, and for you to reach the goals that you want to, it's important for you to be sad. कि वो जोन में जाना पड़ता है कि नहीं भाई मैं बहुत छूतिया आदमी हूँ, मैं जो भी कर रहा हूँ बहुत मतलब जो भी कर रहा हूँ नहीं, बट हाँ कि आई हैव टू मतलब बोलते हैं लो पे जाना चाहिए तभी जाके हाई आएगा. इफ यू आर लाइक ऑलवेज ऑन हाई you won't be able to achieve the things that you want to. So it is important to be sad. बोलते हैं ना कि कभी कभी बस रोने का मन करता है, बट वो रोने के बाद अच्छा लगता है कि हाँ ब्रो ठीक है, आई नो व्हाट्स हैपनिंग, मैं एनालाइज कर रहा हूँ अपने दिमाग में, आई नो कि ये चीज़ गलत कर रहा हूँ, बट आफ्टर अ पॉइंट आई एम लाइक कि ठीक है वो रियलाइजेशन वॉज इंपॉर्टेंट. उसके बाद ही मुझे पता चल रहा है कि ये चीज़ें करनी है. मैं अगर वो रियलाइज ही ना करूँ मैं ये सब गलत कर रहा हूँ तो मेरे को पता ही नहीं चलेगा सोल्यूशन क्या है. So it is very important to be sad sometimes, not always. You shouldn't be a depressed bastard कि bro हर बार मैं भैंचो रो रहा हर चीज़ के लिए victim. I don't like the people who always play the victim card कि bro मेरे साथ ही ऐसा होता है, मेरा नसीब खराब है. नहीं bro, you don't have to be a victim to do something in life. So it is important to be sad bro. Yeah. And I think in the opinion also it was like कि emote more often. Yeah. है ना, probably because at the end of the day again as per these norms that are going on, we as men are not looked at कि इन लोग उतना रोते होंगे या ऐसे करते होंगे. मैं तो बहुत रोता हूँ. मैं तो कोई भी पिक्चर देख लूँ, तारे ज़मीन पर देख लूँ, मेरी अभी पूरी नदियाँ बहने लग जाएंगी. तो मेरा तो वैसा है. बट actually crying and all, it just makes you feel things, and it makes you feel human as well. And it makes you realize कि life is not always like this, like Harvey Specter says, I like this, मतलब बक साले ऐसा जाता है वो proper. So and it just makes you stronger. It I think makes you feel better also, because like you said, like there are so many times when any of us have gone to bed just crying at night, like सोने से पहले रो रहे या जो भी है. But the moment that you wake up the next day, you feel a bit better. So example, let's say that life आपका ऐसे जा रहा है, नॉर्मल जा रहा है, एंड यू हैव सम बैकड्रॉप, तो ऐसा पूरा नीचे जाता है ना, एंड यू आर एक्चुअली लाइक एट योर लोएस्ट. बट वहाँ पर इफ यू डोंट इमोट और क्राई और डोंट टॉक टू दोज वन और टू पीपल हु यू ट्रस्ट, सो वो और नीचे जाएगा. एंड इट्स लाइक यू योरसेल्फ आर जस्ट फॉर डिगिंग अ होल फॉर योरसेल्फ. बट उसके बाद लाइक एग्जाम्पल व्हेन यू क्राई, तो उसका जो अगला मॉर्निंग होता है, तो पहले फिर नॉर्मल सी वॉज दिस, यू आर हियर राइट नाउ, लाइक आफ्टर क्राइंग और समथिंग और बीइंग सैड अबाउट इट एंड जस्ट एक्सेप्टिंग इट, द नेक्स्ट मॉर्निंग इट विल बी जस्ट लाइक दिस, है ना. फिर यू वोंट रिवर्ट बैक टू नॉर्मल सी, बट इट विल बी अ बिट बेटर. देन आफ्टर अ वीक और अ मंथ यू विल बी लाइक कि नॉर्मल. है ना. तो that is the exact definition of progress bro. If it's just this, then that's not progress. It's like it has
to go like this, it has to go like this. Yeah. If it's not, it just goes like this, then it's not progress. It's just declining. So वो graph ही important है, and you need to accept that this too shall pass. कि bro, this is valid for sad situations and happy situations. Like nothing is constant. Exactly. When you know something is going absolutely right, you need to be grateful for it, but you need to understand that ठीक है, there's something which will happen which might not go my way, and you need to be sad ready about it. Yeah, you need to be ready to accept that कि ठीक है bro, it happened. ऐसे हर बार अच्छी चीजें नहीं होंगी तुम्हारे साथ. Life man is the other way around also, bro. Something bad is happening, you need to understand it, or something good is also going to happen. Correct. It's not like bro constantly you'll just be bad. And in my life though, I've always experienced it that way कि if something good happens, after some time I'm a bit scared. मतलब scared in the sense कि because you know something will happen that will make you just sit and like अब क्या करूँ, है ना? It will just make you sit and think, and you'll be upset or you'll be scared or like whatever, है ना? Because obviously it won't be like a rosy day every day, है ना? And if I have like 2-3 or like if I have like 2-3 such days continuously, उसके बाद I think कि इतना एक साथ तो खुशी आता है, तो उसके बाद वो कुछ तो आता ही है ना, which will not match this wavelength. It will go like this, and after this I know something like nice will happen which will go like this. तो फिर like फिर one thing that I have realized in just these 24 years is that like time will just like pass away this quickly, 100%, and things will not remain as they were. Like not ऐसे बोलते हैं, you should be able to accept anything and everything, and you shouldn't, ऐसा बोलते हैं extremes में कभी नहीं जाना चाहिए. Just be okay with it, even if like something is not going your way, you should still try to be happy कि ठीक है चल मैं कर लूंगा फिगर. You shouldn't be extremely sad or you shouldn't be extremely happy. वो बीच में वो अच्छा है, peace. So obviously you must be knowing this cricketer Harshal Patel. तो वो आया था ब्रेकफास्ट विद चैंपियंस में, तो उसमें शायद से उसने कहा था कि वो हर मोमेंट ऑफ लाइफ में वो ऐसा नॉर्मली रहता है, ठीक है, लाइक थोड़ा खुशी थोड़ा दर्द होता है, बट बहुत ज़्यादा भी ऐसा नहीं है ये वो हो गया. मतलब ही इज़ लाइक कि अगेन जस्ट पैराफ्रेजिंग, लाइक उसने बोला कि द की टू लाइफ इज टू बी इन इक्विलिब्रियम, है ना. फिर वंस यू हिट दैट स्पॉट कि तुमको बहुत ज़्यादा भी किसी चीज़ में, बल्कि बिकॉज यू नो कि थिंग्स विल चेंज एंड दिस विल नॉट बी कॉन्स्टेंट, एंड एट द सेम टाइम यू हैव टू एंजॉय द मोमेंट एज वेल, है ना. यू हैव टू एंजॉय द मोमेंट, यू हैव टू लर्न फ्रॉम द मोमेंट, यू हैव टू इमोट एंड यू हैव टू बिल्ड गुड कनेक्शंस एंड लाइक व्हाटएवर. बट ऐसा नहीं कि ऐसा फिर पूरा टाइम रहेगा, क्योंकि तुम वो जोन में जाते हो फिर कुछ खराब हो जाता है तो तुम एकदम यार ये क्या हो गया. तो थोड़ा इक्विलिब्रियम में, पर उसका ये बात भी अच्छा है कि कुछ खराब भी होता है तो भी लाइक तुम काम हो थोड़ा, कि चलो ठीक है, पॉजिटिव माइंडसेट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट ऑप्टिमिज्म, कि ठीक है ब्रो, दिस इज द वर्स्ट फेज ऑफ माय लाइफ, बट मैंने पहले भी इधर से निकल चुका हूँ, अभी भी निकलूंगा. वो पर्सपेक्टिव होना चाहिए बेसिकली. हार्दिक पांड्या, शाउट आउट. Unpopular opinion: body building has ruined men's perception of what a healthy body should look like. I am 100% true. I am all in for it. कि ये तो सही बोला है बंदे ने, because I feel कि out on the internet or in young men's mind it is that कि like a good healthy fit body means कि आपके बड़े बाइसेप्स है, ब्रॉड शोल्डर्स है, या ऐसा फिर सिक्स पैक्स है. आई रिमेंबर आई थिंक दिलजीत ने बोला, ऋतिक रोशन ने भी बोला है कि for six pack it doesn't symbolize कि you're healthy. Exactly. Your body fat is low obviously, but it's not that you're healthy. अगर तुम ripped हो, अच्छा body है, but you smoke a lot, you drink very frequently, you do drugs, which maybe half of Bollywood does, and they're ripped. Not sure if they're healthy or not. So to categorize them as healthy or fit is like probably not the right word. Like for me, if I think of it, to be like an ideal healthy and a fit person to me is like a low body fat, like probably I may be wrong, but let's say below 20% or something is I think ठीक है फिर भी. High intensity, high stamina. I think for flexibility it is like very underrated. Very underrated. हम तो इतना स्टिफ हो जाते हैं भाई थोड़ा बहुत जिम करके यहाँ से यहाँ मूवमेंट नहीं होता, बट एक बार कभी जाओ तो मतलब कि इफ यू डू सम योगा, बिकॉज आई डू योगा अ व्हाइल बैक, वो इंस्ट्रक्टर बोल रहा था यार आपका बॉडी कितना स्टिफ है, हिलता ही नहीं है यहाँ से वहाँ. देन आई रियलाइज कि कुछ नहीं है भाई बॉडी में, पूरा स्टिफ हो गया. तो अगेन फिर हाई इंटेंसिटी, हाई स्टेमिना, like a low body fat percentage,
आई थिंक फ्लेक्सिबिलिटी, उसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट यू नो मेंटल पीस, एंड इसके अलावा 3 things आई फील, योर BP, शुगर एंड योर कोलेस्ट्रॉल शुड बी इन कंट्रोल. अगर ये जो भी मैंने बोला अगर ये है ना, तो आई थिंक ये काफ़ी हेल्दी और फिट है बंदा. एंड इसमें भी एक और इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी बोथ मिस्ड, sleep schedule. 100%. Sleep schedule is so important in terms of your productivity. Again, your mental health, because आपका irritation and all those सब उस पर depend करता है, which in turns affect your personal relationships. मैं अगर सो नहीं रहा हूँ, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, and मैं आके तेरे से अच्छे से बात नहीं कर रहा हूँ, तो it's like क्या sense है? Having a routine is the most important thing, like because the most boring thing to do, and it's doing that boring thing again and again every day is the most important thing. Like is the toughest thing to do. Is the toughest thing to do. But if you crack it, it's like unbeatable. अभी मतलब बोलते हैं ना, ये जनरेशन में 2-3 बजे सोना है सो नॉर्मल ब्रो, कि हाँ ब्रो मैं 3 बजे सोया, एंड पीपल एक्चुअली ब्रैग अबाउट इट कि ब्रो 3 बजे सो के 6 बजे उठाओ मैं ब्रो, वैसे नो स्लीप ब्रो. बट ब्रो ऐसे क्या चूतिया बा ब्रो, आई डोंट गेट इट. यू शुडंट फ्लेक्स ब्रो. ठीक है, कभी कभी सबका होता है ब्रो, छुट्टी होगी मैं भी लेट सोता हूँ, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड स्लीप शेड्यूल. वेकिंग अप एवरी डे वही टाइम पे, करेक्ट, दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू डू. क्योंकि 2 दिन उठोगे, तीसरे दिन यू आर लाइक ब्रो फक इट, मैं नहीं उठा, आई एम लेजी टुडे. नो ब्रो, इट डजंट वर्क लाइक दैट. स्लीप शेड्यूल ऐसे उठ के तुम जा लाइक रन पे वॉक कर रहे हो, जिम जा रहे हो, उसके बाद वही अपना फिर ऑफिस में जाके अच्छा डाइट मेंटेन करना, कि ऑफिस में जाके सब नीचे जाके कुछ वड़ा पाव खा रहे, स्मोक कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, फिर घर आके टाइम पे फिर से वही चीज़ खाना. एंड इट्स ऑल्सो डिफिकल्ट एट द सेम टाइम, बिकॉज अगर आप 11-12 बजे तक वर्किंग है, तो आपका डिनर भी ऑफिस में आ रहा है, तो सब मैकडी खा रहे हैं, एंड देन यू हैव टू थिंक कि चलो इफ इट्स लाइक अपना कहते हैं वंस इन अ वाइल थिंग मैं खा लेता हूँ. बट अगर आपको एक हफ्ता चल रहा है ना, लाइक प्रॉपर लेट सिटिंग है ना, एक दिन KFC आ रहा है, एक दिन मैकडी आ रहा है, लाइक खराब लगने वाले. मतलब कि मेरे केस में तो मेरे को एक्ने हो जाता है, एंड लाइक फिर ऑल दोज थिंग्स, तो मेरे को तो बिल्कुल ही नहीं जमता ये सब. तो या मतलब उसके अलावा आई फील दैट कि इन दिस वर्ल्ड की लोगों ने ना वो फिर बॉडी बिल्डिंग को फिटनेस से इतना उसको ऐसा कर लिया, बट लाइक फिर बॉडी बिल्डिंग आई थिंक मे बी इज मोर अबाउट स्ट्रेंथ, योर पावर. बट इफ यू सी, इफ यू कंपेयर बॉलीवुड एक्टर्स विथ लेट्स से क्रिकेटर्स और एनी स्पोर्ट पर्सन, सो अभी सारे क्रिकेटर्स का ऐसे कुछ बॉडी नहीं है. खाली कोहली का है, वो भी बहुत लीन है ना, गिल का है बहुत लीन है. इन लोग का ऐसे कुछ बॉडी नहीं है. बट इफ यू ask any of the for cricketers to run एक बहुत for long distance race है ना, like फिर versus I think a Bollywood actor, तो अब तो हमको पता है कौन जीतने वाला है. Exactly bro, there's no two ways about it. Yeah, तो उनका training especially a sports person, उनका training is more about stamina, intensity, agility, and especially that recovery. They focus a lot on recovery. है ना, those ice baths that they do, that sleep schedule that they maintain. Athletes का यही है ना bro, it's about sustainability, कि तुम्हें वो बॉडी से 10 साल 15 साल खेलना है, और तुम्हें इसलिए 10 साल 15 साल वो मेंटेन करके रखना है. बॉलीवुड का कैसा है ब्रो, इट ऑल डिपेंड्स ऑन रोल. आज मैं एक मूवी कर रहा हूँ, 3 महीने में मेरे को मोटा होना एकदम, फिर मेरे को मेरे को अगला फिर मूवी मिला जिसमें आई नीड टू डू लिफ्ट, मैं 3 महीने में स्टेरॉइड्स लूंगा, कुछ भी करूंगा फटाफट. ये इज जस्ट फॉर शोकेसिंग पर्पसेस, ये मूवी के लिए अपनी बॉडी बना रहा हूँ, बट इनसाइड यू आर नॉट फिट. बिकॉज ब्रो कितने लोग बोलते हैं शाहरुख खान ऐसे रिप विप दिख रहा है, बट 10-15 सिगरेट दिन के फूकता है, डब्बे खत्म कर देता है. और फिर आमिर खान ऑल्सो ब्रो, मैं कल ही उसका कुछ पढ़ रहा था, बंदा जब उसका डिवोर्स हुआ, ही वाज ड्रिंकिंग अल्कोहल एवरी डे, 1 बॉटल दिन का पीता था, और बट मूवी में उसको एकदम रिप्ड है, वो है. बट इट्स नॉट अबाउट बीइंग फिट, इट्स जस्ट अबाउट शो बिजनेस. सम अप ओनली कि मतलब ये कैसा है, बट या मतलब एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ मेंटल like toll on you, मतलब ऐसा क्योंकि तुम दिख रहे हो बाहर से, but that having that schedule when you're drinking like let's say 1 bottle of alcohol plus working out 4 hours in the gym, तो हाँ मतलब वो लाइक बॉडी कैसे सहन करता है इतना सारा, बहुत एक्सट्रीम एंड्स पे ना दोनों, बहुत ज़्यादा. तो वो समझता है. एंड इन केस ऑफ एथलीट्स, द हैबिट्स दैट दे बिल्ड एट दैट यंग एज, एट द एज ऑफ 24-25, दे आर नॉट डूइंग इट कि मेरे को आज और कल खेलना है. दे आर डूइंग इट कि जब मैं 35 का होऊंगा तब मैं सर्वाइव कर पाऊंगा कि नहीं. तो वो जो 35 से लेकर अपना लाइक 40 के एज रेंज में दे आर लाइक कि आज अगर अच्छे हैबिट्स बिल्ड करूंगा, आज अच्छा खाऊंगा पीऊंगा ट्रेन करूंगा, तो probably वो फिर तभी जाके पे ऑफ होगा. Correct. And you can see in case of Kohli. Yeah bro. Oh, we have a north and south divide over here. Oh, a very damn. A very controversial opinion.
It says dosa is greater than chole bhature. Nah, bro. For me, it's chole bhature. But my girlfriend is South Indian, but bro, chole bhature है bro. ऐसे क्या डोसा? I mean, bro, South Indian कुछ लोगों को ना एकदम crazy लगता है. I also like dosas, but chole bhature, bro. The satisfaction, that masala, gravy, bhature में वो जो fat रहता है. हम fitness की बात कर रहे थे, but totally opposite आ गए. But for me, it's always going to be North Indian because it has those spices बहुत हैं. The variety. मतलब इसमें कैसा है, डोसा में भी काफ़ी सारे वैरायटी होते हैं, बट फॉर मी इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी नॉर्थ इंडियन बिकॉज आई एम ऑल्सो यूज टू ईटिंग नॉर्थ इंडियन स्टफ. मेरे घर भी बनता है साउथ इंडियन, बट फॉर सम रीजन आई डोंट लाइक साउथ इंडियन फूड दैट मच. मैं खा लूंगा कभी कभी डोसा, कभी कभी इडली, बट इट्स जस्ट नॉट माई टाइप, ब्रो. आई थिंक I like both. But if it were my cheat meal, then obviously I think chole bhature, chole kulcha, like whatever. डोसा का ये चीज़ अच्छा है कि इट इज़ वेरी लाइट ऑन योर बॉडी, है ना. यू डोंट फील हैवी एंड यू नो आफ्टर दैट तुम्हारा ऐसा है कि तुमको फिर वैसा नहीं कि बहुत ज़्यादा नींद आएगी. छोले भटूरे मैंने खा ली तो मैं सो रहा हूँ. सोना है भाई, आराम. हाँ, मतलब कि उसका एक अलग ही पर्पस है छोले भटूरे. इट्स लाइक अ प्रॉपर चीट मील. इट्स लाइक यू नो तुम खा रहे हो एंजॉय करने के लिए, यू नो टू हैव दैट टेस्ट, टू अच्छे ऐसे एक लस्सी पी के सोने का मस्त. है ना. फिर डोसे का है कि इट इज़ नॉट अ चीट मील, तो एंड इट्स वेरी लाइट, तो तुम्हारी बॉडी को उतना अफेक्ट नहीं होता है. तो एंड प्लस स्पेशली इन बॉम्बे, ठीक है, आई थिंक इन मुंबई इट इज़ वेरी एक्सेसिबल डोसा. एंड इट्स लाइक इट्स वेरी वर्सेटाइल. जैसे केएल राहुल है ब्रो, ऐसे ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हो, डिनर में भी खा सकते हो, लंच में भी खा सकते हो. एंड सो मेनी वैराइटीज. एग्जैक्टली. लाइक छोले भटूरे, लाइक I like chole bhature more in terms of taste, but in terms of versatility, it's like masala, cheese masala, Mysore masala, sada, onion sada. I know so many people who eat ऐसे dosa for breakfast, but whereas North में तो बहुत common है. People eat dosas for dinner also, but छोले भटूरे तो breakfast में नहीं खा सकते हो. Lunch में होता है, dinner भी it's very heavy छोले भटूरे. तो usually lunch में खाना prefer करते हैं लोग ताकि फिर सो भी जाए. Sunday afternoon को खा. रात को तो बहुत heavy हो जाता है. बहुत heavy हो जाता है. तो डोसा का वो बेनिफिट है कि तुम कभी भी खा सकते हो, कैसे भी खा सकते हो. अब तुम्हें थोड़ा चीट करना है तो ऐसे चाइनीज डोसा ले लिया, मसाला डोसा ले लिया, वैसे है. बट एंड यू नो लाइक आई सेड कि आई थिंक मुंबई में बहुत एक्सेसिबल है डोसा, क्योंकि नॉर्थ में इफ यू गो टू दिल्ली तो वहाँ पर तो सब स्ट्रीट वेंडर्स बेच रहे हैं, और कितने 20-30 रुपए में बेच रहे हैं. एंड वेरी टेस्टी, वेरी वेरी टेस्टी. तो 20-30 रुपए में तुमको वो मिल रहा है ऐसा नॉर्मल स्ट्रीट पे. तो बट यहाँ पर नहीं है, अपने इसमें नहीं, सिटी में नहीं, अपने में है ना. फिर बॉम्बे में नहीं उतना. तो एंड हमारे यहाँ पर तू जाएगा तो एक किलोमीटर चलेगा तेरे को 2 मिल जाएंगे डोसा वाले. करेक्ट. ओके, मूविंग ऑन टू द लास्ट सेगमेंट. दिस इज a short one. So I'll just give you 2 options and you need to pick one and explain why. First one, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा और ये जवानी है दीवानी. ZNMD. YJHD is nice, but अभी ऐसा थोड़ा सा चाइल्डिश लगता है मेरे को देखने में. It's like too much fun. But I think ZNMD में एक वो अलग ही वाइब था. एंड उसमें जो सब कैरेक्टर्स है, दे आर एक्चुअली एडल्ट्स. करेक्ट. तो राइट नाउ यू कैन रिलेट मोर. वो ऐसा जाके वो गया वेकेशन पे, गया उधर कॉन्फ्रेंस कॉल कर रहा है, ऐसे कर रहा है, ऐसा गाड़ी रोक के. सो रिलेटेबल मैन. वही YJ. मेरा भी आंसर इज ZNMD ओनली, इवन दो आई लाइक बोथ द मूवीज. बट YJHD का ये है कि उसपे बोलते हैं ना टिपिकल बॉलीवुड मूवी जैसा वाइब है कि रोमांस हो रहा है, ब्रेकअप हो रहा है, वैसे है. बट इवन दो वो टाइम पे इट वाज क्रेजी, स्टिल इट इज वेरी क्रेजी. बट ZNMD बोलते हैं ना, इट इज अ ड्रीम, लाइक गोइंग ऑन अ बॉयज ट्रिप, डूइंग दीज एडवेंचर्स, गेटिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, वर्किंग, जैसे तूने लैपटॉप के पीछे काम कर रहा है, द ह्यूमर, फोन फेंक देना. मैं वही कहने वाला था कि मेरे को थोड़ा ह्यूमर थोड़ा बेटर लगा इन टर्म्स ऑफ माय यू नो अंडरस्टैंडिंग. क्रिकेट और फुटबॉल. वेरी टफ, very very tough. I would say. But have been in following more cricket lately for me. So thoda like a bit more inclination towards that. But while playing football, like I like to play football more. Plus you know for cricket it's that ki every month something new is happening. Correct. So you're always on the hook. And ऐसा भी नहीं कि बहुत बोर हो रहे हैं. अभी IPL 2 महीना चलेगा, उसके बाद आ जाएगा इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज. तो दैट विल बी कुछ अलग लेवल एंटरटेनिंग. करेक्ट. तो फिर वैसा है. प्लस कैसा है कि आई एम नॉट अ प्लास्टिक फैन, बट कैसे अभी वो सब फुटबॉल मैच देख के भी ऐसा ट्रॉमा लग जाता है. लाइक क्या है, चेल्सी 1-0 लीड कर रहा है, 2-1 हार गया. क्रिकेट इज अ मोर एंटरटेनिंग स्पोर्ट इन टर्म्स ऑफ कि हाँ कुछ ना कुछ ड्रामा हो रहा है, मसाला हो रहा है, 4 हो रहा है, 6 हो रहा है. लॉट ऑफ पीपल कंसिडर फुटबॉल इन आवर कंट्री एज अ बोरिंग स्पोर्ट बिकॉज
अगर 0-0 रहा तो what's the point of watching it? Like ऐसे 2-0 रहा तो ठीक है, it's entertaining, 2-1 रहा, it's entertaining, but for me it's going to be, I love cricket also, but football because I follow football more. मैं United तेरा एक फुटबॉल चैनल है तो अगर कभी बोलता ना क्रिकेट बट हाँ ब्रो, मतलब अपने कंट्री में तो ऑफ कोर्स इट्स क्रिकेट, फुटबॉल को इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, बट फुटबॉल क्योंकि यू आर इन्वेस्टेड इन दैट, क्योंकि देयर इज नो प्रेडिक्टेबिलिटी, ऐसे पूरा इतने सारे है, यूसीएल है, so many different teams. Only if your team is playing. हम तो बैंच क्या कॉन्फ्रेंस लीग, यूरोपा लीग कौन सा खेल रहे हैं. बट हाँ ऐसे फुटबॉल कैसा है, लॉन्ग लास्टिंग 9 मंथ का टूर्नामेंट है, जैसे इंग्लिश प्रीमियर लीग हो गया. तो ऐसे वंस यू आर इन्वेस्टेड, नो यू आर लाइक ओके अभी क्या हो रहा है, देयर सो मैनेजर्स गेटिंग सैक्ड, न्यू प्लेयर्स आर कमिंग इन, इट्स दैट डिफरेंट थिंग कि वो ये साइन हो गया भाई, लास्ट साइनिंग डे वो जाके साला हम लोग का ओनर जाके एंजो फर्नांडिस को उठा के लेके आ रहा है, लाया वो चेल्सी अनाउंसमेंट भाई, हम लोग पागल हो गए थे जब एंजो साइन हो, लाइक ही गॉट साइंड ऑन द वेरी लास्ट सेकंड. हां ऐसा था कि क्या हो रहा है भाई, वो प्लेन से लेके अर्जेंटीना से फ्रेश परफॉर्म करके आया था बंदा, एंजो प्लेयर क्या यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट क्या बना था वो. सो ही वाज दैट प्लेयर कि वो ब्रो जो भी टीम लेगी इसको, दैट टीम इज गोइंग टू बी लाइक फक ब्रो, इनसेन टीम, बट ये वेरी इनसेन भाई. मजा आ गया उसको लेके. लास्ट वन, मुंबई और दिल्ली in terms of IPL teams? No, in terms of city. City, yeah, देख हम तो रहे खाली बॉम्बे में, sorry, in Mumbai. हाँ. Mumbai बीकम मारेंगे. But I think बचपन से यहाँ पर ही रहे तो ये लाइफ की आदत है. But I've been to Delhi quite a lot, you know it. पिछले साल में तो बहुत गया हूँ. So see, in terms of food it's better, no doubt. है ना, Delhi in terms of food is better. I think it's more of heritage. वो थोड़ा वहाँ पर वो vibe आता है heritage वाला. है ना, एंड पीपल आई थिंक मे बी एंजॉय अ लाइफ लिटिल मोर देयर, है ना, क्योंकि वहाँ पर बहुत काम का नहीं है. यहाँ पर ज़्यादा काम का ऐसा सब बहुत है. बट अगेन यहाँ पर एक अपना ही एक अलग कंफर्ट जोन है. यहाँ पर सेफ्टी ज़्यादा है, नाइट लाइफ थोड़ा बेटर है आई फील, एंड इट्स जस्ट होम मैन. मतलब तुम यहाँ से उठ के तुम कहीं पर भी चले जाओ, यू गो टू like a typical sports like Marine Drive or like Sea Link or etc. तो वो वहाँ पर नहीं मिलेगा. And यहाँ पर I think roads are also a bit easier to recognize. मैं दिल्ली में बाय रोड तो मैं घूम जाता हूँ, कहाँ से कहाँ लेके जाते हैं. In terms of metro connectivity I think Delhi is way better. वो कुछ अलग ही बना दिया यहाँ पर मेट्रो. दिल्ली का यही है कि मतलब बोलते हैं ना उधर बैलेंस इज नाइस. जैसे तूने बोला मुंबई में जस्ट वर्क, दिल्ली में वो पार्टी कल्चर काफ़ी टाइम से रहा है, और इंडिया में अभी आया है, बट दिल्ली में इट्स वेरी ओके टू लाइक ऐसे वीकडे पे पार्टी करो, ऐसे थोड़ा चिल लाइफ है उधर. पत्ते खेलो, दिवाली आ गया, उसके एक हफ्ते पहले से सब पत्ते खेल रहे हैं. बट अगेन सेफ्टी वाइज मुंबई इज मच बेटर, बिकॉज मतलब मेरे ऑफिस में काफ़ी दिल्ली के बंदियां हैं, दे आर लाइक ब्रो हम दिल्ली में रहते थे बट वी प्रेफर टू स्टे इन मुंबई बिकॉज सेफ्टी वाइज आई कैन रोम हियर एट 2 AM. इट्स नॉट लाइक यू 100% सेफ, बट इट्स वेरी सेफ इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि तू देखेगा हर एक टाइम पे कोई ना कोई ट्रैफिक रहेगा, किधर ना किधर लोग है, एक्टिव है. और प्लस मुंबई में वंस यू लिव इन मुंबई यू आर यूज्ड टू दैट हेक्टिक लाइफस्टाइल, काम नेक्स्ट क्या है. सो आई ऑल्सो प्रेफर मुंबई बिकॉज वो ठीक है, वो चिल लाइफ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स ओके टू हैव दैट चिल लाइफ ऑल्सो, बट Mumbai is Mumbai, bro. It's I think that I think Mumbai keeps you on the toes all the time. Yeah. It's like कि मतलब again like we discussed earlier कि वो दिन कब start होता है कब खत्म होता है वो नहीं पता चलता. And after that जब दिन the for beautiful thing about Mumbai is कि जब दिन खत्म भी हो जाता है ना, people somehow squeeze out time and like चल 1-1.5 घंटे के लिए बाहर निकलते हैं and then they'll go to some place, explore some new cafe or some bar or club or like फिर whatever. And it's like कि they know कि मैं अगर 11 बजे भी घर से बाहर निकला ना, 2 तक भी सब चीज़ें खुली है एंड मैं 2 तक सेफ हूँ बाहर. तो उसका एक अलग फिर कंफर्ट जोन है आई थिंक फिर मुंबई का. दिल्ली में आई थिंक वो उधर लोगों में भी थोड़ा ज्यादा ही को पता है मेरा बाप क्या करता है. वो तो पूरा स्टीरियोटाइप हो गया अभी. बट दिल्ली के लोग का मैंने ये देखा है कि इफ यू आर देयर गेस्ट, जो मैंने फील किया है, दे आर वेरी हॉस्पिटेबल दैट वे, है ना. अदरवाइज लाइक आई डोंट नो अदरवाइज कैसा है, बट इट्स लाइक कि एक तो दे एड्रेस एवरीवन विद भैया. हाँ जी भैया बताइए भैया, ये एक्सेट्रा. दे हैव दैट टिपिकल टोन एंड दैट भैया कल्चर. सो फील अ बिट नाइस. वो एक बंदा मैं काम से गया था, ही वाज लाइक 35-40 एंड ही इज कॉलिंग मी भैया. मतलब मैं 24 का हूँ. बॉम्बे में नहीं होता ना ये सब. On that note, thank you so much for joining in for this episode as well. Again, we had some food for thought conversations.
मैं आगे नहीं बोल सकता कि हमने आगे क्या किया क्योंकि मेरे को पता नहीं वो कट में बैठेगा कि नहीं, पर एक पता है एक सेगमेंट तो जा रहा है. So thanks so much for watching. Please tune back, and if you have any feedback, please write to us or drop it in the comment section. Please subscribe, like, and hit the follow button. Thank you. We'll see you next Sunday. Peace. मैं कर रहा था ना. मैं बोला मैं करूँगा आज, मैं आउटरो दे रहा हूँ पहली बार. कर ले. ये हो गया, तूने मेरा मोमेंट छीन लिया.